What is the strength now, ma'am? So it's 42. And now it's 45. Sure. So we have to wait for more couple of minutes. I think, sir, we should wait. I think, sir, we can start now. We have a 60 plus students now. Okay, ma'am. So first of all, I would like to say good morning to all the eligible candidates for Cognizant, and I wish you will all get placed in such a wonderful brand. Okay. So guys, whatever I'm going to discuss with you during this complete period, please be focused onto that, because this time the pattern of the questions and the pattern of the exam is going to be a change little bit. Okay. So again, I'm saying have a copy pen with you. Please keep it with them and just listen to me carefully what I'm going to tell you. Okay. This time, Cognizant has suggested a new flavor of test, and the name of the test is Autometafix. What is this Autometafix? This is a kind of test in which you have to give 7 questions, and the total time limit is 20 minutes. Are you getting my point? You have to solve 7 questions only in 20 minutes. So you have to be very, very precise, right? Now, the kind of questions which are going to be asked has been categorized into 3 categories. First is logical error, another one is code reuse, and third one is syntactical error. I hope you are listening this particular conversation very, very carefully, because until unless you're not clear with the concept, you're not going to attempt the test. Okay. So the name of the test is Autometafix, and the number of questions are going to be categorized into 3 categories. First one is logical error, second one is code reuse, and third one is syntactical error. Right? Total duration of the test is 20 minutes, and in 20 minutes, you have to attempt 7 questions. Right? Now, what sort of questions are going to be asked into your Autometafix test? And again, I'm saying this thing, whenever you are going to sit in next couple of days for next number of drives, let's say for Wipro and sort of things, every company is now going to be shifted their ways from normal routine to Autometafix. So this has to be very, very important for your future companies which are coming to your campus, right? Now, another important thing is that such type of questions will have to be performed not in the form of MCQ. I hope you all are comfortable in English, or shall I repeat in Hindi? Rishu ma'am, Student, please post if you have any doubt or you have any query. you all are comfortable in English? So all are comfortable. Sure, sure. Thank you. So going ahead, what you need to do in the Autometafix
exam, this time this test is going to be conducted by MCAT. You all are aware of what MCAT is, right? So MCAT will provide this automata fix through a IDE. What is IDE? It's a kind of text editor. That means you will be given 7 questions in the form of the slide which we have already shown to you. I guess this is visible to all of you, and the same kind of questions will be asked in your text as well. What is going to be do? In some sort of questions there might be some logical error, in some sort of questions there might be code reuse, and in some sort of questions there can be syntactical error. You have to identify those kind of problems in terms of logical error, in terms of syntactical error or code reuse, and then you need to draft your number of lines in IDE. So there will be as such no provision of ticking the answers in the form of MCQ. I hope this point is clear to each and everyone. So please eradicate this thought from your mind that this automata fix is going to be MCQ based. No, it's not MCQ based. It is going to be based on a different pattern where you have to identify the problem and again rewrite it. You have to find out the logical error and then you have to rewrite it, or they will give you fill in the blanks in the form of code reuse and then you have to write it, right? Day before yesterday I opted one test on your behalf and I solved some sort of questions. So that is why I definitely tell to you that what sort of pattern is going to be happen and what sort of questions are going to be arranged, right? So the very first question which we are going to discuss. Okay, before going to the question, I hope logic is clear. What sort of automata fix test is and what sort of categories are clear. Just type your answer in the form of yes and no. If still you have doubt, so I can proceed with that. Rishu ma'am, please confirm once whether they all clear with this or not. Sir, there is no doubt. Okay, now let's start with the very first question. So this first question is like this. I guess it is visible to each and every student. Say yes or no. Yes, sir, it's visible. Okay, now beta, the question which is coming to your test will be of medium level or will be of simple level, and I would like to tell you this thing very precisely that in that test which I already have given, the questions are basically from your first year second year C pattern. Okay, जो program आप C की language में first year second year की lab में करते थे, questions उसी pattern पे थे. Reason 20 मिनट में आपको 7 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन को आप डिवोट करेंगे 3 से 5 मिनट का. तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं. I hope it is clear. The questions are going to be very simple because you have to solve each and individual question in 3 to 5 minutes as per the duration of the test. Right now, let's start with this very first question. So in the very first question, the function says, and जो question की language होगी वो भी इसी pattern पे होगी, तो आपको कोई problem नहीं होगी. You all are familiar with the questions now. The question says the function print prime accept the initial number num and number of digits n as inputs and print all the prime numbers of n starting from the initial number n. तो हमारे पास एक sample input given है, that input is 5, 23 and the sample output will be 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 and 21. What you need to do, your task is to use the function to identify the logical error and complete the missing line of code to pass the test case successfully. I guess question सबको समझ में आ गया होगा. Question की language हो सकता है थोड़ी difficult हो, but question basically ये कहना चाह रहा है कि हमें एक range के prime numbers calculate करने हैं. वो range क्या है? हमें 23 के prime numbers calculate करने हैं. Start कहाँ से करना है? 5 से. I hope the question is clear to each and everyone. तो देखो question बहुत simple है. अब मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम आपके पास 20 मिनट का है जहां पर आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको पूरा कोड देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वहां क्या होगा, जो आपका ड्राइवर कोड होगा, जो मेन वाला फंक्शन होगा, वो आपको विजिबल नहीं होगा, वो वैकेंट पे चल रहा होगा. ठीक है, तो आप उसको भूल जाइए. आप सिर्फ फोकस रखिएगा उतने सेक्शन पे जहां पर आपको फाइंड आउट करना है वो लॉजिकल एरर, वो सिंटैक्टिकल एरर या कोड रीयूज. मेरा कोड रीयूज से मतलब ये है बार बार कहने का that code reuse means कि some number of lines will be missing from the code and that you need to identify and that you need to write it. Write आपको करना पड़ेगा because the test will be IDE. वहां पर 3 लैंग्वेज होंगी, C होगी, C++ होगी, Java होगी. आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. But I guess you all are comfortable in C, so go ahead with the C language. I hope up to here no problem as such. Right, let's proceed with this question. So this question says your task is to use the function to identify the logical error and complete the missing line of code to pass the test case successfully. तो अब आपको इस क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन चेक करना है कि क्या कि इस क्वेश्चन में कोई लॉजिकल एरर है या नहीं है. So I am proceeding to the second part. Okay, now before that, for your understanding, let it be clear कि what are prime numbers. So I guess you all are clear with prime numbers
are those numbers either which are divisible by 1 or by itself. I hope everybody knows this concept because this is a very simple program. So prime numbers are those numbers which are divisible by 1 or by itself. हमारा लॉजिक क्या है? That we need to calculate all the prime numbers of 23 which are started from 5, right? Now, so your first task is to identify the logical error. So next you will get a question which you need to solve in 60 minutes. Identify the code and please start typing your answers in the chat box. And this MCQ doesn't mean that you will get MCQ in the ID. यहाँ पर हमारे पास ID का ऑप्शन नहीं था, that's why we are saying this. आपको क्वेश्चन में लॉजिकल एरर फाइंड आउट करके वहां पर कोड में ही उसको क्या करना है, चेंज करना है. So let's start with this. Student, please post your answers in the chat box. Students are answering option A as an answer. Okay. Few students are saying option C and Okay. option D as well. Okay. Let's proceed with the answer. The answer is line number 2. Okay. Let's proceed with why this line number 2. Let's come to here. Okay. Now, when we are going to execute this code, so in this code, we are checking that in line number 2, which is supposed to be this, is going to calculate my choice of printing the prime number. But right now, when we are going to print the prime number, the count is equal to 0. That means when the value of count equal to 1 every time, it is not going to print any number. लेकिन अगर हम इसको लाइन नंबर 2 में डिक्लेयर कर देंगे तो ये फॉर लूप के लिए क्या हो जाएगा, एक लोकल वेरिएबल नहीं बनेगा, जिस वजह से हमें क्या करना है, लाइन नंबर 2 को रिप्लेस करके कहां पर आना बेटा, लाइन नंबर 3 में. आई होप इट इज क्लियर. ये पहला लॉजिकल एरर है. एक्चुअली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आईडी के अंदर थे, दैट देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ लॉजिकल एरर्स व्हिच यू नीड टू आइडेंटिफाई. तो आपको क्या करना है, सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है, एमसीक्यू नहीं होगा. आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना है, वहां पर कोड लिखना है. ठीक है. अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन है, लाइन नंबर 4, जहां पर आपको फॉर लूप का लॉजिक कंप्लीट करना है टू कैलकुलेट द प्राइम नंबर. ओके. Sir, Let's see this. students asking for repeating this. Okay, students are asking for repeating this. Okay, let's see beta. If I'm going to do like this for loop Sir, in, yeah, students are requesting to explain it in the Hindi. okay, they wants to, okay, no problem. हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि जब हम i की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 5 से, ओके, लेट्स सी दिस, यहां पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं. जब हमने कहा कि फॉर int I is equal to num, I is less than n, I plus plus, ओके, और हमने यहां पर ऊपर लिखा हुआ है int count is equal to 0. ठीक है. दिस इज माय लाइन नंबर 2 इनिशियली, राइट बेटा. अब जब हम लॉजिक को चलाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें प्राइम नंबर का लॉजिक लिखना पड़ेगा. प्राइम नंबर का लॉजिक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप मिला हुआ है i इक्वल टू num, i is less than n, i plus plus. नाउ द वैल्यू ऑफ num वी हैव ऑलरेडी टेकन एज 5 और हमें कहां तक कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टिल 23, राइट. अब आप चेक करो, जब हम इनसाइड वाला फॉर लूप चलाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट द लॉजिक हियर. लॉजिक क्या होगा, हमने क्या कहा, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ. तो हम 1 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि नंबर 1 से डिविजिबल है. सो हम एक और लूप चला रहे हैं व्हिच इज इक्वल टू j इक्वल टू 2 एंड j शुड बी लेस देन और इक्वल टू. अब आपके पास यहाँ दो चॉइस है, या तो आप प्राइम नंबर के लिए 22 तक चेक कर लो,
या आपको पता है कोई भी नंबर कब तक डिविजिबल होगा, अपने हाफ तक, ठीक है, हाफ के बाद वो डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमने क्या करा, नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब आप एक टेस्ट केस रन करके देखते हैं, जब j की वैल्यू होगी, i की वैल्यू है हमारी 5 इज लेस देन 23, दैट मींस कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इनर लूप के अंदर आ जाएंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, j इज इक्वल टू 2 बेटा, j इज लेस देन इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। j की वैल्यू कितनी है, 2 इज लेस देन इक्वल टू, यहां कितना आना चाहिए, हियर इज सपोज टू बी कितना आना चाहिए, बिकॉज इट इज क्वेश्चन, we are not going to consider remainder, we are going to consider question, so here it is going to be 2, condition becomes true। तो हम क्या करेंगे, इनर लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे, हम चेक करेंगे कंडीशन, इफ i मॉड्यूल j इज इक्वल टू 0, यही होगी प्राइम नंबर की कंडीशन। i की वैल्यू कितनी है 5, j की वैल्यू कितनी है 2 विच इज इक्वल टू 0, नो, कंडीशन बिकम फॉल्स। हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे और काउंट इक्वल टू 0 करेंगे, तो हम क्या करेंगे, n की जगह एक वैल्यू प्रिंट करा देंगे, दैट इज माय 5। अब क्या होगा, हम लूप से बाहर आ गए, तो जो हमारी i की वैल्यू है वो कितनी होगी, दैट विल बिकम 6 राइट नाउ। ओके, अब हम फिर से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, j इक्वल टू 2, j इज, सी दिस, हम यहां चेक करेंगे 6 divided by 2. Now, what should be the answer? Answer will be 3. That means 2 is less than equal to 3. Condition again becomes true. हम इस वाले लूप के अंदर आ जाएंगे, यहां पर क्या है वैल्यू, i की वैल्यू क्या हो चुकी है अब 6 इक्वल टू 0। अब जैसी 0 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, काउंटर को इंक्रीज कर देंगे बाय +1। अब देखो, जब काउंटर की वैल्यू +1 हो जाएगी तो ये जो कंडीशन है काउंट इक्वल टू 0 बेटा कभी मैच ही नहीं करेगी, क्योंकि काउंट इज इक्वल टू 1 कहां पर लिखा हुआ है, ऊपर, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट दिस काउंट इक्वल टू 0 इन लाइन नंबर 3। तो सिमिलरली इट विल प्रिंट 7 and then similarly it will skip 9 and then it will print 11 and so on, we will calculate the prime numbers। okay Rishu ma'am, it is clear? सर एक बार j की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ये डाउट है बच्चों को। j की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, कहां पर नहीं होगी, लेट्स सी this value। okay, I'll again explain। okay, see this, for i is equal to, sorry हम j वाला ही लिख लेते हैं, for j is equal to 2, j is equal to num divided by 2 j प्लस प्लस। अब जब हमारा ये लूप बाहर आ जाएगा, पहली बार में जब हम 5 प्रिंट कर रहे थे तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे ना, इस वाले लूप से, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 6 हो जाएगी। अब जब i की वैल्यू मेरी 6 हो गई तो मैं इनर लूप के अंदर चला जाऊंगा, अभी मैंने j की वैल्यू तो इंक्रीमेंट करी ही नहीं है, क्योंकि j की वैल्यू कब कंप्लीट होगी, जब मैं लूप से यहां एंटर मारूंगा। तो क्या होगा, j इज इक्वल टू 2, j शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6 divided by 2। now j is less than equal to 3, 2 is less than equal to 3, करेक्ट। अब ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, इफ वाले सेक्शन में आ जाएंगे, इफ वाले सेक्शन में कंडीशन ट्रू हो गई तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी +1 और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम यहीं सर इस वाले लूप में एंटर कर देंगे। ठीक है मैडम? यस सर, अब कोई डाउट नहीं है। Okay, now I guess some students are saying that sample output में कुछ गलत है, it is intentionally, right? Say yes or no? Student, please post your answers. Or we can Yes. proceed with the second question. Okay? Yes sir. Okay, now time and again I am saying don't consider this automata fix as a MCQ बच्चे, because MCQ नहीं पूछने जाने वाले आपसे, आपको लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई करना है, आपको सिंटैक्टिकल एरर फाइंड आउट करना है, और आपको क्या आइडेंटिफाई करना है,
कोड रीयूज। तो कोड रीयूज में आपको लॉजिक समझ आ गया कि आपको कोई भी पीस गिवन होगा फंक्शन का, उस फंक्शन में आपको पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर लॉजिक है और इस पर्टिकुलर लॉजिक पर आप नंबर ऑफ लाइंस को कोड कीजिए, एमसीक्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां सुन लीजिए ध्यान से। अब जैसे प्राइम नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ये टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप लिख लीजिए एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट कैसे निकालना है। इन सब पैटर्न के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है 100% कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी आपने मैथ्स के बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन बेसिकली फॉर 1D array, and let's start with the question. Given program accepts a 4-digit number and displays a number whose digits are 2 greater than the corresponding digits of the entered number. Given function has some missing line of codes, complete them to get the desired output. Right? Now in this question, there will be no logical error. This question is purely based on write the complete line of codes. क्वेश्चन समझ आ गया आपको? सैंपल इनपुट में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक इनपुट है 5 6 9 6 और आपको क्या करना है, हर एक डिजिट के अंदर +2 ऐड करना है ताकि हमारे पास सोल्यूशन आ जाए। 5 के प्लेस पे आ जाए 7, 6 की प्लेस पे आ जाए 8, 9 की प्लेस पे आ जाए 1 और 6 की प्लेस पे फिर से 8 हो जाए। अब ये 9 की प्लेस पे 1 क्यों आ रहा है? यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है कि जब भी आप एडिशन ऑफ 2 करेंगे इन डिजिट 9 एंड 8 विल प्रिंट द यूनिट प्लेस। राइट, समझ आ गया? दैट मीन्स अगर मैं 9 में 2 ऐड करूंगा तो इट विल गिव मी द आंसर एज 11. So instead of picking this value, I will go with this unit place value. So you have to write down this answer, right? Let's do this. Let's solve this. Question समझ आ गया? Please put yes or no in the chat box. Yes, sir. All are clear. Okay. So please, let's see how we are going to proceed with that. Let's start with this program. So in this program, we have taken a character array 50, then we have taken a variable I, then we have taken the input, and now we are checking the length of this. So we are going to start from the index position 0, and we are going to check the null character at the last of the string, right? Now, this is my initializer, that is I++ for increment. Now, if the character or the value at any given position is equal to 8, what should be the answer? It's a single code line. You will type in the chat box. मैं मारा कुछ आंसर? सर अभी किसी ने आंसर नहीं दिया। स्टूडेंट प्लीज बी एक्टिव। सर वन स्टूडेंट सेड कैरेक्टर I equals to 0. Character I is equal to 0. Okay, very good. Yes, absolutely. Now देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंसिडरेशन आपके पास है कि ये क्वेश्चन आपको 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो प्लीज हैबिचुअल हो जाइए कि आपको ऑटोमेटा फिक्स के अंदर 3 मिनट में ही आपको आंसर देना है, चाहे वो लॉजिकल एरर हो, चाहे वो कोड रीयूज हो, चाहे वो आपको सिंटैक्टिकल एरर पूछ रहा हो। सो प्लीज बी कॉशियस दैट द टाइम लिमिट इज maximum up to 5 minutes, right? Now let's proceed with the next line. So student is saying that if character I is equal to 8, that means what we need to print? We need to print in the place of this कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, so that should be replaced with 0. Why is it so? Because we are going to add 8 plus 2 is equal to 10, and what I tell you that we have to consider only the unit place. That is why we are going to skip this one and we are going to consider only for 0. So the complete solution for line number 6 will be this one. I hope it is clear. Say yes or no. Yes sir, it's clear. See students, again I'm saying questions are going to be very simple, क्योंकि 5 मिनट में हम आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन देंगे और लॉजिक आपको लगाना है और 5 मिनट के अंदर बेटा आपको आंसर देना, और एमसीक्यू नहीं है ये, इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नाउ इन दिस लाइन व्हाट वी नीड टू राइट डाउन हियर, वी आर गोइंग टू पुट कैरेक्टर I इक्वल टू 9, सॉरी कैरेक्टर I इक्वल टू 1। क्या है इसका मतलब कि हमें यूनिट प्लेस में क्या चाहिए अब 1, और 1 कब आएगा? जब इफ एल्सी कंडीशन में क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। So students are saying character equals to 9. Very good. Character is equal to 9. So the correct answer will be
मैं बता देता हूं, हमने क्या बोला कि अब हम 1 को तभी कंसीडर करेंगे जब क्या होगा 9, दैट मींस जब हम 9 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 11, दैट मींस हम इस वाले 1 को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और इस वाले 1 को हम क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी CH इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास एक 10 नंबर की लाइन बची है जहां पर अब हमें भी चेक करना है कि अगर 8 होगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा, 9 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, एल्स अगर कोई और कैरेक्टर आएगा तो हम क्या करेंगे उसमें, बताइए जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। सर +2। वेरी गुड, +2। सो लेट्स सी। अब हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया कि अगर हमारे पास 8 आएगा तो वो 0 को प्रिंट करा ले, 9 आएगा तो वो 1 प्रिंट करा ले, और 8 और 9 के अलावा कोई भी डिजिट अगर आ रही है तो उसमें क्या कर देगा, वो +2 ऐड कर देगा। तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि जो भी कैरेक्टर की पोजीशन हमें मिलने वाली है अब उस पे हमारा कोई भी डिजिट है जो 8 और 9 नहीं है, तो हम उसमें क्या कर देंगे CHI +2। दैट मीन्स यू विल गेट द कंप्लीट आंसर। ओके, नाउ आपको अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट 1D एरे के फॉर्म में, 2D एरे के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में पढ़ने हैं। क्वेश्चन सिंपल आएंगे, आपका कॉग्निजेंट क्लियर हो जाएगा। और कॉग्निजेंट इज अ वेरी गुड ब्रांड दैट वंस यू गेट प्लेस्ड इन कॉग्निजेंट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट, राइट। सो आई होप समझ में आ रहा कि व्हाट इज ऑटोमेटा फिक्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड इनटू इट। लॉजिकल एरर आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज लॉजिकल एरर। कोड रीयूज समझ में आ गया। कोड रीयूज क्या है, आपको क्या करना है, मिसिंग लाइंस में आपको अपना कोड फिल करना है, ठीक है। और ड्राइवर कोड को जो आपको उसमें गिवन है आईडी के अंदर, सिर्फ उसी कोड को आपको चेक करना है, फालतू का कोड मत चेक कीजिएगा, अदरवाइज टाइम लिमिट हमारी कंस्ट्रेंट है हमारे पास, सो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। शैल वी प्रोसीड मैम? यस सर। Okay, all right. So let's see the next question. Now this question is again a mix of logical error as well as code reuse, right? ये क्वेश्चन आपका स्ट्रिंग का है। अब पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज रिमूव कैरेक्टर। इट इज गोइंग टू वर्क टू रिमूव ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट अल्फाबेट्स। आपके पास एक सैंपल इनपुट गिवन है। द सैंपल इनपुट इज learnis25@gmail.com और सैंपल आउटपुट है आपके पास learnis gmail। आपका क्वेश्चन लिखा है योर टास्क इज टू यूज द फंक्शन टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल एरर एंड कंप्लीट द मिसिंग लाइन ऑफ कोड टू पास द टेस्ट केस सक्सेसफुली। ओके, नाउ देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें एक फंक्शन गिवन है रिमूव कैरेक्टर। हमने क्यों यहां रिमूव कैरेक्टर लिखा हुआ है? रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है। वो मेन फंक्शन कैसे काम कर रहा है, रिमूव कैरेक्टर कहां पर कॉल हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें हमारे सिर्फ लॉजिक से मतलब है, क्योंकि हमें 3 या 5 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई भी आपके पास अगर स्ट्रिंग गिवन है, सपोज यहां पर आपको learnis25@gmail.given है, तो आपको इस स्ट्रिंग में से वो सारे कैरेक्टर्स निकालने हैं जो अल्फाबेट नहीं है, और उसके बाद आपको एक फ्रेश स्ट्रिंग प्रिंट करा देनी है जो इन सबसे परे हो। आई होप इट इज क्लियर। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर माइट बी अ लॉजिकल एरर। Okay, you need to identify the logical error and you have to rectify it, and for that we will give you 60 seconds time, right? Let's see this, and please start posting your answers in the chat box. Choose the correct option to rectify the logical error at line 5. Any particular answer which is coming, ma'am? No sir. So now option A is coming as an answer. Okay, so any other option apart from A? All are saying option A. All are saying option number A. Anyone who is saying B, anyone who is saying C, or anyone who is saying D? So right now all are saying option A. Okay, all are saying option number A. Very good. Okay, so yes, it's a very simple question. So the correct answer is A. Okay, now for those, कितने स्टूडेंट्स हैं मैम अभी हमारे पास? 121. कितने आंसर्स आए हैं? Approx 10 to 15. बस, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? Guys, time and again I am saying Cognizant is a very very wonderful company. Your future is going to be very very bright. Apart from ECN, you all are from ECN, I understand, but ECN students, if I going to be placed in Cognizant, your ahead future is going to be very very bright.
राइट? सो क्वेश्चंस अगेन आई एम सेइंग, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 3 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे। तो आप अपने लॉजिक्स को क्लियर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सेज देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको 3 मिनट में सॉल्व करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, सो वेरी गुड, आंसर इज ए। अब वो आंसर ए क्यों आया है, आई होप यू ऑल आर क्लियर। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, लॉजिकल एरर क्या है कि अगर हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं और हम जेड तक चेक कर रहे हैं, तो हमने यहां क्या स्किप कर दिया, ए। दैट मींस जब ए आएगा तो उसका वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा, तो हमारे लॉजिक में से वो क्या करेगा, ए एज ए कैरेक्टर को भी हटा देगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इन दिस कंटिन्यूएशन लाइन हियर आई एम पुटिंग स्मॉल ए। इसका क्या मतलब है कि हम कहां तक चेक कर रहे हैं, कैपिटल जेड तक। तो लॉजिक वही रहेगा क्या, कि जब हमारे पास, जस्ट अ मिनट, okay, so again logic remains the same, that if we are comparing the string position by b and z, that means we are skipping here a, तो हमारे कैरेक्टर सेट में से a रिमूव हो जाएगा, जिसका मतलब हमारा टेस्ट पेज सक्सेसफुली पास नहीं होगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड डॉट्स, वो सारे रिमूव होने चाहिए। जो प्योरली कैरेक्टर सेट है वो वहीं पर क्या हो जाए, स्टिक हो जाए। तो हम ए को कंसीडर करेंगे, तभी जाके हमारा लॉजिक सक्सेसफुली सारे पासेस के लिए चल पाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास यहां पर ए है और कोई स्ट्रिंग हमारे पास कैपिटल ए आ गई, तो वो क्या करेगा, वो स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू से कंपैरिजन कर लेगा। दैट मींस यहां पर भी हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ए विल नॉट गोइंग टू बी वर्क। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस स्मॉल ए विद कैपिटल ए। ठीक है, और आपको पता है कि यहां पर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, चाहे इसके फॉर्म में हो रही हो, चाहे यहां परफॉर्म हो रही हो, दे ऑल आर गोइंग टू बी परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ आस्काई वैल्यू। तो आपको आस्काई वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर? आई होप लॉजिक इज क्लियर कि व्हाई वी आर गोइंग टू logically errorly define line number 5 with option number A. Please start typing your answer in the form of yes or no in the chat box so that we can proceed with the code reuse part. Any doubt, madam, in this? So students are saying yes, there is no doubt. Student, you have another option to unmute your mic and you may ask your question. And one at a time, so that no chaos will be created. Yes, and before asking, please post your name. I think so there is no doubt. Okay. We can proceed. Sure. Let's proceed with the query. You want to ask something? You may ask. बता दीजिए बेटा जल्दी से। सर इसमें जे इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, मतलब हमने जे प्लस प्लस तो कहीं नहीं लिखा है बेटा। दैट इज वी आर सेइंग ना, अभी वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लाइन ऑफ कोड। आपने वो थोड़ा पहले पूछ लिया, चलो यही हमारा नेक्स्ट डाउट था कि अब हम इसे कंप्लीट करना है कोड को। ओके, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लाइन ऑफ कोड। सो वी आर गोइंग टू पुट j इक्वल टू j+1। आई होप योर लॉजिक इज क्लियर बेटा। यस और नो? Yes sir, it's clear. देखो क्वेश्चन, हाँ आपने बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पूछा, j इक्वल टू j+1। देखो एक लाइन का कोड है और वो लाइन मिसिंग है, तो ऐसे ही कोड आपको वहां पर मिलने वाले हैं कि आपको लॉजिकल एरर पूछ लिया या आपको वहां से कोड हटा दिया। आपको देखो पूरा कोड लिखने के लिए नहीं दे रहे हैं वो, तभी मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो आपको पूरा कोड नहीं देंगे बेटा वो, लेकिन आपको स्पेसिफिकली उस पोर्शन को आइडेंटिफाई करना है जहां पर वो आपको कोड लिखना है। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप पूरे बिल्कुल नॉच पे हो कि आपने एकदम कोड देखा और आपको पता चल गया कि j इक्वल टू j+1 यहाँ पर मिसिंग है, तो वो हमें लिखना है। तो हमें यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर क्लियर विद दिस? Say yes or no? Yes, it's okay, right. Now, so the next question is for sorting. अब sorting का question है and we are going to categorize this question in the form of logical error. अभी logical error से अब आप सारे लोग identify हो गए कि आपको पूरा कोड given है, वो कोड क्या कर रहा होगा, वो सक्सेसफुली चल रहा होगा, कंपाइल कर रहा होगा, लेकिन उस कोड में कोई लॉजिकल एरर होगी जिसकी वजह से हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लॉजिकल एरर में उस कोड को, उस पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़ना है जहां पर हमारा लॉजिक
गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि कोड तो कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो रहा है इसका मतलब आउटपुट भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, आउटपुट भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। डिजायर्ड आउटपुट हमें तभी मिलेगा जब हम लॉजिकल एरर को क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आने लगा होगा कि ऑटोमेटा फिक्स में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं और किस टाइप का पैटर्न आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो, ताकि हम इस वाले क्वेश्चन के लॉजिक को आइडेंटिफाई कर सकें। प्लीज राइट डाउन। मैम मुझे बता दीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हो सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। Students, please post your answers. प्लीज बेटा लिखिए कि ऑटोमेटा फिक्स में आपको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। We have approx 20 answers and they are saying yes, it's clear. This is very bad. Out of 120 students, you are writing only 20. बाकी के 80 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ऑटोमेटा फिक्स में क्या आएगा। मुझे 120 आंसर्स चाहिए। क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी आप लोगों को क्वेश्चंस की, तब तक आप लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा। आपको सिर्फ अटेम्प्ट ही तो करने हैं ना वहाँ क्वेश्चंस, और आपको टाइम फ्रेम में अटेम्प्ट करने हैं। प्लीज क्वेश्चंस पूछिए कि लॉजिकल एरर में और क्या चीजें पूछी जा सकती है, या सिंटैक्टिकल एरर में और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। Yes, we have few more answers, approx 20. Now, for approx 40 students said yes. Okay, still half of the class is in vacant mode or on करके चले गए हैं and they are not responding. This is going to be very very bad. इस बार दिवाली पे जॉब लग गई और ज्वाइन कर लिया, कंपनीज बहुत हरी में है ज्वाइन कराने के लिए। जब मिठाई का डिब्बा घर लेके जाओगे ना अपनी कमाई के पैसे से, और मम्मी पापा को दोगे, उनको गिफ्ट्स दोगे, तो जो उनके चेहरे पे खुशी होगी और जो आपका सेटिस्फेक्शन होगा वो मैच करके देखना। मतलब वो प्राइसलेस होगा। और वो कैसे होगा कि अगर कॉग्निजेंट का ऑफर लेटर हाथ में आ जाएगा और ऑटोमेटा फिक्स करके डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज बी फोकस, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी। चलो एनीवेज, सो इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक फंक्शन है इंसर्शन शॉर्ट, जिसमें हमें एक्सपेक्टेड प्रिंट करना है आउटपुट आइदर इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सब लोग बहुत वाकिफ होंगे, आप लोग 4th ईयर में हो, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है। लेकिन सिलेक्शन शॉर्ट में अब हम क्या पूछ रहे हैं, आपने जनरली लिखा होगा कि सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट पे आपके पास एमसीक्यू आ गया, या इंसर्ट शॉर्ट में आपने लाइन ऑफ कोड्स लिख दिया। यहां पर हमने इंसर्शन शॉर्ट पूछा है लॉजिकल एरर्स की फॉर्म में, ताकि आपको याद हो, ठीक है। अब जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है, चाहे वो इंसर्शन शॉर्ट हो, सिलेक्शन शॉर्ट हो, क्विक सॉर्ट हो, हीप सॉर्ट हो, आपको लाइन ऑफ कोड्स ऑटोमेटिकली रटे हुए होंगे, क्योंकि आपको अगर लॉजिक पता है तो आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 3 मिनट से कम में भी सॉल्व कर सकते हो, और बाकी का जो टाइम बचा वो आप दूसरे क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक आपको पता है। आपको पता है कि अच्छा ये वाली लाइन में ऐसी प्रॉब्लम कर रखी है, बस इसे चेंज करना है हमें, तो आपका टाइम सेव हो गया। टाइम सेव हो गया, बचा हुआ टाइम आप बाकी के क्वेश्चंस में और डिवोट कर लो। इज इट क्लियर? चलो एनीवेज, हम पहले स्टार्ट करते हैं इंसर्शन शॉर्ट से। इंसर्शन शॉर्ट क्या बोलता है, सॉर्टिंग टेक्निक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। पर हम असेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हमारे पास सैंपल इनपुट गिवन है 7, 21, 26, 9, 5 and 30. Now you all are aware that what is insertion short. Insertion short किस टेक्निक पे काम करता है, इसको एक एरे की फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एरे बना लिया। टोटल साइज एरे का कितना गिवन है, n equal to 6. So we are starting with 0 position or we can start with first position. It's up to you. Okay. So let's start with 0. This is just a minute. What happened? Okay. So this is going to be index position 0. This is going to be index position 1. This is going to be index position 2. And this is going to be index position 3. And this is going to be index position 4. 1 हमने कोई एरे छोड़ दिया क्या? Oh, we missed this one. Oh, sorry. मैं यहाँ एक लगा देता हूँ. Okay. So this is going to be 3. This is going to be 4. And this is going to be, just a minute. This is going to be 5 position, okay, and the value of n is equal to 6. अब आपको पता है इंसर्शन शॉर्ट क्या करता है। देखिए, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूं। इंसर्शन शॉर्ट एक सिंपल फॉर्मूले पे काम करता है। वो क्या कहता है कि जो भी एरे के अंदर पहला एलिमेंट होगा, हम उसको बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड मान लेते हैं कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको क्लास में शीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, आपको मैंने इंडिविजुअल शीट दे दी, आपने अपनी शीट देखी, साइन वाइन किए, और मैंने शीट वापस ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो पहली सीट पे बच्चा बैठा होगा वो सीट मैंने उसकी पकड़ ली।
अब वो मैंने उसकी शीट पकड़ ली, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से उस शीट को शॉर्टेड मान लूंगा। दैट मीन्स जो भी रोल नंबर उस रोल नंबर के बाद आएंगे वो मैं उसको बाद में लगाता चला जाऊंगा, और जो भी रोल नंबर उससे पहले आएंगे मैं उसको पहले लगाता चला जाऊंगा। बस ये सिंपल इंसर्शन शॉर्ट है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, हम फर्स्ट पोजीशन से। हमारे स्टार्ट करने का लॉजिक ही फर्स्ट पोजीशन से इसलिए है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट आइटम है विच इज 7, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, यहां पर लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई करना है कि क्या लॉजिकल एरर यहां पर हो सकता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। आप इंसर्शन शॉर्ट समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार बता दीजिए, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, या अगर आपको पूरा पास चाहिए तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सर क्लियर है, नो डाउट। क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसीड विद दिस। So you have 60 minutes of 60 seconds of time, and please identify okay, what should be the logical error in line number 5 and how we are going to rectify it. And this time I want 120 answers if there are 120 students in the class. So they are answering option C as an answer. Okay. How many students have given the answer, ma'am? So 10. 10. Again. Charged up. थोड़ा वार्म अप कर लो, आंसर्स दो। Few students are saying option B. Okay. Maximum are saying option C as an answer. Okay. Maximum means how much? 50, 60, 70? Sir, approx 30. Okay, approx 30. Very good. And what rest are doing? Have you taken the आप लोगों ने पेन और पेपर लिया हुआ है ना अपने पास? पेन और पेपर रखेंगे अपने पास तो आपको और इजी हो जाएगा लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगेन आपको सिर्फ वही सेक्शन देखना है, वही पीस ऑफ कोड देखना है जहां पर आपको लग रहा है कि एरर है। तो जहां पर इंसर्शन शॉर्ट का आंसर हमने दिया है तो सिर्फ हम इंसर्शन शॉर्ट वाले फंक्शन को ही देखें, फालतू की चीजें ना देखें जब हम आईडी में काम करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। सो आंसर इज बी। So those who have given the answer B, your answer is correct. How many students have given the madam option B? Sir, option B, approx 45. Very good. Okay. So I hope, yeah. So students are asking to explain insertion sort. Okay, sure, ma'am. Sure, ma'am. So let's see how this insertion sort is going to be work. Okay. So we can just take this is okay, so let's take this 7, 21, 26, 9, 5 and 30 और आउटपुट क्या आना चाहिए 5, 7, 9, 21, 26 एंड 30। चलो इसको एक एरे की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। प्लीज सारे लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आपको कोड के थ्रू भी समझा देता हूं। पहले एक बार आप मैथमेटिकल लॉजिक देख लीजिए और तब हम कोड के थ्रू देख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, हम 0 पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास है 1, यहां पर हमारे पास 2, यहां पर हमारे पास 3, यहां पर हमारे पास 4 और यहां पर हमारे पास बेटा 5। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो सॉर्टेड है। तो अगर ये एलिमेंट मेरा सॉर्टेड है तो मैं क्या करूंगा, उसके नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करूंगा। तभी हम लूप को कहां से चला रहे हैं, i = 1 से चला रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ये वाला आइटम इस वाले आइटम से छोटा है तो हम तो स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। अगर सॉर्टेड के नेक्स्ट वाला एलिमेंट ऑलरेडी अपने सॉर्टेड पोजीशन पे है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे दोबारा से, जस्ट ए मिनट। ओके, अब हम चेक करेंगे 26 के लिए, क्या 26 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है इन रिस्पेक्ट टू 21? हाँ जी, 26 इज ऑल्सो एट इट्स करेक्ट पोजीशन, सो वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म द स्वैपिंग। अब हम आएंगे 9 पे। 9 क्या बोल रहा है, 9 बोल रहा है कि अगर ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है तब तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, और अगर ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है इंसर्शन शॉर्ट के लॉजिक में तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। दैट मींस हमारे पास 7 रोल नंबर की शीट आ गई है, 21 रोल नंबर की शीट आ गई है और बेटा 26 रोल नंबर की शीट आ गई है। अब हमें किसकी शीट अरेंज करनी है, 9 रोल नंबर की। अब मुझे आप बताओ कि 9 रोल नंबर की शीट में कहां पर लगाऊंगा, जब कलेक्ट करूंगा मैं बीच में लगाऊंगा ना, कहां पर, 7 और 21 के बीच में। तो मैं पहले 9 को 26 की पोजीशन पे लेके जाऊंगा, फिर 21 की पोजीशन पे लेके जाऊंगा और फिर मैं 7 से चेक करूंगा क्या ये 7 से बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको 9 को यहां पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसको कोड के फॉर्म में चला के देख लेते हैं।
मैम ये लॉजिक समझ में आ गया बच्चों को? मैं एक बार कोड के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज पूछ लीजिए। स्टूडेंट प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज पोस्ट। अदरवाइज मैं कोड क्लियर। चलो कोड के टर्म्स में एक बार और देख लेते हैं बेटा, ठीक है? चलो लेट्स सी, ये मेरा करेक्ट कोड है। ओके लेट्स सी हम कैसे इसको चलाएंगे। अब हम कहां से लूप चला रहे हैं? i इक्वल टू 1 से। तो हम यहां लूप लिख लेते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। देखिए बेस्ट अप्रोच हमेशा यही रहेगी कि अगर आप लाइन बाय लाइन चेक करें, सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेक्शन को जहां पर आपको लग रहा है कि लॉजिक में गड़बड़ है, फालतू का कोड चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम का फैक्टर है आपके पास, ठीक है? अब i इज इक्वल टू 6 हो गया। अब जब i इक्वल टू 6 हो गया तो ये i प्लस प्लस तो अभी हमें देखना ही नहीं, क्योंकि चलेगा नहीं, अभी चलेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, बार बार क्या हो रहा है, जस्ट ए मिनट। ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस सेक्शन। यहां क्या है, इंट वैल्यू इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। अब आप मुझे बताइए हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं एरे को? फर्स्ट पोजीशन से। दैट मींस एरे की फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हम कहां डाल दें, किस वेरिएबल के अंदर? वैल्यू के अंदर। अब आप बताइए एरे की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है बेटा, जल्दी बताओ। अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, 21 से, यस और नो? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 0, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हमने पीछे भी समझाया अभी मैंने आपको कि हम 7 को ऑलरेडी बेटा सॉर्टेड मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा इंसर्शन शॉर्ट यही बोलता है कि फर्स्ट पोजीशन पे हम ऑलरेडी सॉर्टेड मान के चल रहे हैं। कोई लॉजिक में कोई गड़बड़ तो नहीं है? बता दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। यस रिशु मैम? करना है तो प्लीज पोस्ट कर दो। मैम आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है रिशु मैम। स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो प्लीज पोस्ट कर दो। Time and again, insertion short says first element is already at sorted position. Okay. So students are saying कि clear है and still they are not able to answer. Still they are not able to answer. What thing is not clear? First position by default sorted. I think Bunny Rana, it's your question. First position by default sorted. I don't know what he want to ask. चलो मैम एक काम करेंगे, बच्चों को लास्ट में टाइम दे देंगे ताकि वो क्लियरली 1-to-1 इंटरेक्शन कर ले। हो सकता है कि इतना लेंदी वो लिख ना पा रहा हो बच्चा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? देखो आप ऐसे मान के चलो बेटा, जब मैथमेटिकली हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं एक वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। मैं वो बताने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। अब आप देखो, जब मैंने यहाँ पर एक पोजीशन एज्यूम कर ली, इस पोजीशन को सपोज मैंने 0 मान लिया, ठीक है? मैंने खुद से एक इंसर्ट कर दी पोजीशन इस टाइप के लॉजिक से। अब आप मान के चलो कि जो 7 है वो माइनस इनफाइनाइट से हमेशा बड़ा होगा। से यस और नो? जिस भी स्टूडेंट का डाउट था प्लीज यस और नो में टाइप कर दो आंसर। सर स्टूडेंट्स आर सेइंग क्लियर है, ठीक है? तो बेटा अगर माइनस इनफाइनाइट से 7 बड़ा है तो दैट मीन जो फर्स्ट आइटम होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से तो भी कभी छोटा होगा ही नहीं वो। इसी रीजन की वजह से हम इंसर्शन शॉर्ट में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हम एक एक्स्ट्रा पोजीशन इनिशियली ऐड कर लेते हैं जहां पर हम कोई भी फ्लैग वेरिएबल डाल देते हैं, ताकि ये हम कंफर्म कर सकें कि फर्स्ट आइटम हमारा ग्रेटर है या नहीं है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 7 जो है मैं ऑलरेडी सॉर्टेड मान के चलूं, क्योंकि इंसर्शन शॉर्ट का लॉजिक ये कहता है। अगर ये बबल सॉर्ट होता तो मैं ये नहीं बोलता, बबल सॉर्ट में मुझे स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ती, कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ती। लेकिन अभी हम पहले ही मान के चलें कि पहला आइटम सॉर्ट है, तो जब पहला आइटम सॉर्ट है इसलिए मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? अब आप देखो यहां पर एरे की आई में कौन सी वैल्यू है, 21। दैट मींस हमने एक वेरिएबल बनाया जहां पर वैल्यू आ गई 21, ठीक है? अब जब ये वैल्यू 21 आ गई, अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट लाइन को। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, j इज इक्वल टू 1। तो j के अंदर हमने क्या डाल दिया, i की वैल्यू। व्हाट इज i? i 21 नहीं है, i का इंडेक्स वैल्यू क्या है बेटा? i का इंडेक्स वैल्यू है j इज इक्वल टू 1। अब हम while लूप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? while लूप क्या बोल रहा है कि इफ j विच इज 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड array j minus 1, that means again it is 0 is greater than value। तो 1 तो 0 से बड़ा है, यहां क्या आएगा 1, that is answer is true। and array of 0 कितना है, already 7 and 7 is greater than 21। say yes or no?
कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो जो वैल्यू है 21 वो कहां जाएगी, जे पोजीशन पे। दैट मींस अभी कहां है वैल्यू 21, यही तो मैं बोल रहा हूं। 21 क्या है, 7 से बड़ा, तो यहां पर मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ गया, से सुनो। सर एक डाउट है, हाँ हर्ष यू मे अनम्यूट योर माइक एंड यू मे आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, प्लीज प्लीज पूछिए बेटा, हर्ष पूछिए हर्ष। आनंद। मैम सर ये जे इज ग्रेटर देन जीरो जो लाइन 5 में है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? बिकॉज जे तो हाँ, जीरो से ग्रेटर ही रहेगा ना। मतलब आई इज इक्वल टू 1 से अगर इंक्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है तो जे तो ऑब्वियसली जीरो से ग्रेटर ही रहेगा, तो लेकिन इसमें। लेकिन अब आप देखिए, जब ये 9 है, ठीक है, अब आप बताइए, जब यस सर। 9 को मुझे स्वैप करना है, ठीक है, 9 को यस। मुझे स्वैप करना है, तो 9 को पहले मुझे कहाँ किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 26 पे। फिर 26 के बाद मुझे इसे करना पड़ेगा 21 से, लेकिन कंफर्मेशन के लिए मुझे 7 से भी करना पड़ेगा। तो मुझे जे की वैल्यू हमेशा जीरो से ग्रेटर ही रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं उसके बाद चला जाऊंगा तो मैं माइनस इन्फिनिटी बोल रहा हूं। अगर मैं वहां चेक करूंगा तो यूजलेस बनता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पहला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उससे छोटा तो वहां होगा ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी तो उसकी प्रॉपर मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। अच्छा। यस समझ सर। आया, यस सर। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। सर एक बार और बता दीजिए। देखो आप ये, मैं पहले पूरा कोड एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप इसी में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं समझ चुका आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है बेटा। ओके ओके तो सर। अब ये 21 आ गया, अब आप नेक्स्ट पास में आ जाओ। नेक्स्ट पास में क्या होगा, देखो अब नेक्स्ट पास में क्या होगा। नेक्स्ट पास में हम कहां आ जाएंगे, 26 पे, ठीक है। से सुनो, आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। आई इज लेस देन एन, व्हाट इज आई राइट नाउ, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन बिकम ट्रू। अब एरे की जो सेकंड पोजीशन पे होगा वो उसको हम कहां डाल देंगे, वैल्यू के अंदर डाल देंगे। सेकंड पोजीशन पे क्या है, बताओ जल्दी से आनंद, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। 26 सर, वेरी 26। गुड, 26, तो हमने 26 रख दिया। अब हम चेक करेंगे, अब 26 के लिए चेक करेंगे जे इज ग्रेटर देन 0, लेकिन 26 ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो हम फिर से क्या करेंगे, उस वैल्यू को वहीं पर छोड़ के आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम आ जाएंगे सीधे 9 पे। अब आप देखो यहां पर, जब जे की वैल्यू कितनी होगी, 3, जे की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब जे इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, एंड एरे जे ऑफ -1। अब देखो अगर मैं यहां पर कर दूं जे इज लेस देन 0, तो क्या होगा, जब जे इज लेस देन 0 हो जाएगा तो कभी ये वाला कोड चल ही नहीं पाएगा, और ये वाला कोड चल ही नहीं पाएगा तो मैं स्वैपिंग ही नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, रीजन, क्योंकि सबसे पहले मैं उसको सॉर्टेड मान चुका हूं। आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। यस सर। यस। Okay, very good. So students, this is the way your insertion shot is going to be work. So आपको सिंपल ये वाला कोड आप रिमाइंड कर लीजिए, या आपको लगता है कि आप इसको फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, वो आपकी विजिबिलिटी है। कोड किसी भी एस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन लॉजिक हमेशा यही रहेगा इंसर्शन शॉट का, कि आपने पहले आइटम को ऑलरेडी सॉर्टेड मान लिया और बाकी आइटम्स को आप प्रिफरेबली उसके आगे पीछे लगाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका टाइम सेव होना है, टाइम सेव होना है। इंसर्शन शॉट अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप मेजर कर सकते हो कि कहां पर लॉजिकल एरर हो सकती है, अगर वो लॉजिकल एरर की फॉर्म्स में पूछा जा सकता है। अगर आपको कोड रीयूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है तो आपको कोड ऑलरेडी पता ही है। तो आपका क्या होगा, 3 मिनट का क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, और 1 मिनट अगर आपका बच जाता है तो आप किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हो, इन केस योर क्वेश्चन इज complex. So again saying, automata fix is all about logical error, syntactical error, and code reuse. Code reuse means missing line of codes. Logical error means your test case is going to be compiled, your program is going to be compiled, but you will not get that desired output as mentioned in the questions. To get that desired output, you need to rectify the code in terms of logical error. Rishu ma'am, shall we proceed with the next slide? Sir, before that, can we take a break for 2 minutes for Sure attendance? ma'am. Yeah, sure. Students, please type your roll number only.
We can start, sir. Okay. So, see, this is going to be my favorite question. Although this question is going to be very very simple. Reason why this question is very very favorite, क्योंकि इसके फ्लेवर का क्वेश्चन एक आपके टेस्ट में डाला गया था जो मैंने अटेम्प्ट किया था कॉग्निजन का. अब देखो उस क्वेश्चन में क्या था गिवन. अब आप, मैंने सिंटैक्टिकल एरर का कोई क्वेश्चन नहीं डाला क्योंकि मैं सोचा था सिंटैक्टिकल एरर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के बेसिस पे उन्होंने कुछ सिंटेक्स पूछा था. जैसे अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको लाइन ऑफ कोड्स भी इक्वली चेक करनी है, सिर्फ उस कोड की जहां पर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है या पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ कोड रीयूज. देखो वहां पर क्या था कि सपोज ये क्वेश्चन है आपका, यहां पर लेट्स सपोज दिस, वेयर इट इज दिस फंक्शन कॉल. अब यहाँ पर फंक्शन कॉल में मैंने इंट लगा दिया, तो आप लोगों को पता है कि फंक्शन कॉल जब भी करता है वहां पर हम सिर्फ क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, रिटर्न टाइप नहीं लगाते. तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगी. इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन थे. ठीक है. या सपोज यहाँ पर मैंने लिखा सम इक्वल टू 0 और यहाँ मैंने करली वो लगा दिया टर्मिनेशन सिंबल, दैट मींस इसका तो रिटर्न टाइप ही नहीं आया कहीं सम का, तो ये भी एक सिंटैक्टिकल एरर हो गई. तो देख रहे हो कि 3 मिनट को यूटिलाइज करने के बेसिस पे आपको ये नहीं चेक करें कि आपकी कोडिंग स्किल्स कैसी हैं या आपको कितना आता है, वो चेक कर रहे हैं कि आप डिसेंट तरीके से कोड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करे जा रहा हूं हर क्वेश्चन पे, क्योंकि ऑटोमेटा फिक्स आपके लिए नया है. वहां पर आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, वहां पर आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलने वाले हैं. तो खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, खुद को आईडी पे टाइप करने की हैबिचुअल बना लीजिए कि कोई भी अगर आपको कोड मिलेगा तो वहां पर मिसिंग लाइन ऑफ कोड्स में हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हर एस्पेक्ट से अगर आप क्वेश्चन की लाइन को देखोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे. मैं कह रहा हूं आप 7 में 7 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, लेकिन आपने डिसेंट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए 5 4, तो आपका ऑटोमेटा फिक्स का एग्जाम क्लियर होने वाला है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो 20 minutes and 7 questions. Okay, let's proceed with this question now. तो इन दिस क्वेश्चन समझ आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं. हमारे पास ये पीस ऑफ कोड है जहां पर हमें क्या गिवन है, एक सीरीज गिवन है, सिंपल सी सीरीज है. क्या कह रही है वो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर. हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो अब इस कोड में आपको लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई करना है कि क्या लॉजिकल एरर हो सकती है. हम इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सिर्फ आइडियोलॉजी मेरी ये थी ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि इस टाइप के एरर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. सो लेट्स सी. Choose the correct option to rectify logical error at line number 3 and your option starts now. Please, 120 answers. So options are coming as answer as an option A. That is, yes, बहुत simple question है. So answer is A. Very good. We have around 50 plus answers. Okay. मैम मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा बच्चों को. मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि ऑटोमेटा फिक्स पे कोई डाउट तो नहीं है उनका. Yeah, sure, sir. We will give them a time around 11:55. Sir, we have 90 plus answers and all are saying option A. अच्छा ठीक है. आप देखो 40 में से 90 बच्चे आ गए क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि इस बार दिवाली की मिठाई हम अपने पैसे से खरीद के घर लेके जाएंगे. ठीक है. तो बच्चे चार्ज हैं एकदम. बस यही आप अपना मोटिवेशन बना के रखिए और देखना कि you will crack the exam of Cognizant. That doesn't matter you are from CSIT or you are from EC or you are from EN or you are from mechanical. Everybody is liable to crack that because questions are going to be very very simple depending upon आप कितनी preciseness के साथ उस question को opt कर रहे हो. So obviously answer is n by n. Okay, let's proceed. Choose the correct option to rectify the logical error at line number 3 and your time start now. It's very simple but it's still we can see. And this time the answers are going to be 120 or if it is more than 120 I want in that ratio. So we have one answer option D. D. Okay, anybody else? So all are giving or not? Sir, around 6 to 10 answers option D. All are option D. Okay, so yes, correct option is D. But rest of the student क्या login करके चले गए हैं? बताइए.
मैम इंडिविजुअली क्वेश्चंस पूछिए आप, पता चल जाएगा कौन यहाँ है कौन ऑफ मूड में है। Kevri, please answer this question. पूछिए उससे, चैट बॉक्स में लिखेगी वो क्या आंसर है। Okay, option D. Okay, correct. So the correct Sir, option is obviously D. Yes. all are saying option D as an answer. Okay, very good. So yes, लेकिन correct option is D. students have a doubt Yeah. कि ये लाइन नंबर 10 में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई थिंक ये डाउट लाइन नंबर 3 के लिए था, क्वेश्चन लाइन नंबर 3 के लिए था। क्वेश्चन लाइन नंबर 3 का मैम हमने सॉल्व कर लिया पहले ही, शायद बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम। n by n हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सी, ठीक है, एंड दिस इज फॉर लाइन नंबर 10, राइट? Yes sir, we have around 60 answers. We can Okay. proceed for the solution. ओके, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब कुछ नहीं करना इसमें, हमें एक एंटर करनी है वैल्यू, लॉजिकल है, हम 1 से चलाएंगे उसको, लूप को, लेस देन इक्वल टू 9 तक जाएगा, सॉरी n तक जाएगा, i प्लस प्लस जो भी आपने n लिया है, सपोज n इज गोइंग टू बी 3, सो हम क्या करेंगे, k इक्वल टू पावर, अब देखो यहाँ अगर मैं यहाँ पर n लिखा होता तो पावर मेरी हमेशा गड़बड़ हो जाती, ठीक है, यही हमने क्वेश्चन में लॉजिकल एरर लगाया हुआ था। n की वजह से कोई सिंटेक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉजिकली क्या होगा, आंसर वो प्रेडिक्टेबल आंसर नहीं देगा, वो कोई और आंसर आपको फ्लोट कर देगा, यही चीज हमें आइडेंटिफाई करनी थी। तो हमने क्या करा, इन टर्म्स ऑफ n आई हैव पुट हियर i एंड k इक्वल टू पावर i। अब ये पावर फंक्शन कॉल हो जाएगा, पावर फंक्शन में क्या है, सपोज अगर n 1 है तो 1 इंटू 1 रिटर्न करेगा, वो k को क्या रिटर्न करेगा 1, सम ऑलरेडी हमारा 0 है तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, 2 इज ऑल्सो सॉल्विंग, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस, k इक्वल टू पावर 2, फिर से फंक्शन कॉल होगा n बाई n, दैट मीन्स, जल्दी बताओ, 2 इंटू 2 4 and so on, so final answer will be printed. Okay, I hope it is clear. स्टूडेंट कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लियर है। Okay बेटा, चलो। Okay, now next question is string. Simple question है, given program takes input as a string and displays द रिवर्स ऑफ द सेम स्ट्रिंग। तो आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन किया होगा कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है जहां पर हमारे पास कोई स्ट्रिंग होगा और उस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। बट रिवर्स के साथ साथ आपको अगर रिवर्स का लॉजिक पता है तो आपको पता होगा कि कहाँ पे लाइन में कौन सी एरर आई हुई है, बस वो आपको एरर को रिजॉल्व करना है एंड योर डाउट विल बी डन, ठीक है, समझ आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन। ओके, so choose the correct option to rectify the logical error at line number 6 and you already know in advance कि what's supposed to be asked। आपको वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जिसकी वजह से स्ट्रिंग रिवर्स हो जाए। स्टूडेंट प्लीज पोस्ट योर आंसर्स। Any specific pattern, any specific points, any specific answer? Only 5 answers right now. We have Okay. option A. Option A. Right. Okay. Now maximum students are saying option A, around Okay. 15 students. Only 15. Yes. बाकी सब क्या कर रहे हैं, पूछिए स्पेसिफिकली, पूछिए नाम। Harsh, Manas, Abhay, please post your answer. Harsh, please post your answer. Now we have 50 plus answers and all are Okay. saying option A. Okay, let's see what should be the correct answer. Yes, very good. Correct answer is option A. Let's see okay, how it is going to be done. So we have a character string. Oh, sorry, we have a character array and the name of the array is str. Then we have this ABCD variables. Then we have scanf
and then we have this for loop. So this for loop basically used to check the length of the string, क्योंकि हम कहां तक चेक कर रहे हैं, नल कैरेक्टर तक, और नल कब होगा, स्ट्रिंग के लास्ट में। अब हमें ये चेक करना है कि जो मेरे पास एक लर्निस नाम का स्ट्रिंग है, क्या वो रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। और रिवर्स के बाद ऑप्शन क्या आना चाहिए, SYNRAEL। और ध्यान से देखना इसको, जिसको नहीं समझ में आया तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। सपोज इसको मैं एक एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। ओके, जस्ट मेक अ फ्रेश एरे। So here I'm going to put L, here I'm going to put E, here I'm going to put A, here I'm going to put R, here I'm going to put N, here I'm going to put Y, and here I'm going to put S. Let's start with this 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So here A is the index value which is going to be started with A equal to 0, and B is going to hold the size. Okay, so this A is basically starting index for loop, and this B is going to hold that value which comes from the size. Okay, so C is here total size. What is the total size here? Just tell me. 7. 7 minus 1, B is equal to 6. I hope it is clear. Say yes or no. Please type it in the chat box. Yes sir, clear है। Okay, now what we are going to do, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब हमें चेक करना, अब हमने यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी एरे नहीं लिया है। ऑक्सिलरी एरे मतलब हमने कोई नेक्स्ट एरे नहीं लिया जहां पर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को किसी भी पैटर्न से कर सकते हो। आप इसे इसमें एरे का डिलीशन भी लगा सकते हो, आप सिंगल एरे में भी इसको कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। वो आपको कोड किसी भी पैटर्न में मिल सकता है, लेकिन अगर आपको रिवर्स करना है तो मिलेंगी यही दो चीजें। या तो आप सिंगल एरे में सारी की सारी चीजें कर लो बेटा, या फिर आपको कोई एक नेक्स्ट एरे गिवन होगा, मतलब सेकंड एरे गिवन होगा, जिसमें आप शिफ्टिंग करके कर सकते हो, या आप उसमें डिलीशन का लॉजिक भी लगा सकते हो। आई होप डिलीशन का लॉजिक आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम A इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हमारी है L। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो L है ये मेरा S की पोजीशन पे आ जाए, और जो मेरा S है वो मेरा कहां पर आ जाए, L की पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हैपन, हियर इट इज गोइंग टू बी S एंड हियर इट इज गोइंग टू बी L। कब तक चेक करते चले आए, उसके मिडिल पॉइंट तक। तो मिडिल क्या हो सकता है, 7 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू समथिंग इन पॉइंट्स, बट इंटीजर है तो हम उसको क्या कर लेंगे, 3 कंसीडर कर लेंगे। तो 3 क्या हो गया मेरा, मिड वैल्यू हो गया। ठीक है, लेट्स सी। अब A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 6, क्या A 6 से छोटा है? जल्दी बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 0 इज लेस देन 6, कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो हम क्या कर देंगे, जो स्ट्रिंग की A पोजीशन पे, A पोजीशन का मतलब हो गया 0, जो वैल्यू 0 पे है वो हम कर देंगे D में। दैट मींस अभी अंदर D के अंदर हमने क्या रख दिया, L को रख दिया। अब जो B पोजीशन पे है, B पोजीशन कौन सी है, B पोजीशन पे क्या है, 6, 6 पे क्या है मेरा S। दैट मींस जो स्ट्रिंग के 6 पोजीशन पे है वो हम किस में डाल देंगे, स्ट्रिंग की A पोजीशन पे। दैट मींस अभी यहाँ पर ब्लैंक हो गई है और उसकी जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर S। और सिमिलरली हम क्या कर देंगे, इसको रिपीट करके यहाँ पर L रख देंगे। ये लूप चलता चला जाएगा, A की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और B की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। दैट मींस A अब हमारा कहाँ जाएगा, E पे, और B कहाँ चला जाएगा, Y पे। सेम लॉजिक करना है, Y आ जाएगा मेरा यहाँ पर और E आ जाएगा मेरा यहाँ पर। आई होप लॉजिक इज क्लियर कि हाउ दिस कोड इज गोइंग टू बी वर्क। लॉजिक अल्टीमेटली ये बताना है कि रिवर्स कैसे हो रहा है। तो आपको कोड भी पूछा जा सकता है, कोड रीयूज की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में लॉजिकल एरर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है कि क्या लॉजिकल एरर थी, क्योंकि टेस्ट केस चल रहा है लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। और हो सकता है आपसे सिंटैक्टिकल एरर भी पूछा जाए। सिंटैक्टिकल एरर में आपसे ये पूछ लिया कि भैया बताओ ये इस लाइन में क्या एरर है, तो आपको वो एरर नहीं पूछेंगे, सिर्फ बोल देंगे सिंटैक्टिकल एरर है। तो क्या हो सकता है, या तो आपने साइज ना दिया हो, या आपने इसका रिटर्न टाइप ना लगाया हो, या आपने कोई ऐसी सिंटैक्टिकल मिस्टेक कर दी हो जो कि कंपाइलर्स को एक्सेप्ट ना करे। तो इस टाइप के फ्रेम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप अगर आपको क्लियर हो गया हो डाउट तो प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए। और अभी भी कोई डाउट है ऑटोमेटा फिक्स से रिलेटेड तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। सर एक डाउट है स्टूडेंट का। ईशा, यू मे आल्सो अनम्यूट योर माइक। शी वाज आस्किंग अबाउट द लॉजिकल एरर इन लाइन नंबर 5। लॉजिकल एरर इन लाइन नंबर 5।
यस सर, इट शुड बी c इक्वल्स टू 0, जबकि वहाँ पर a लिखा हुआ है, तो वो लूप भी गलत चल रहा है। नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, हम तो मेंशन ही नहीं कर रहे, हम कोई चीज मेंशन ही नहीं कर रहे। हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि c इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस, वेरी गुड, ये एक सिंटैक्टिकल एरर है। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पर a इक्वल टू 0 ना लग के इसको ब्लैंक छोड़ दूं तो मुझे कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, a को स्टार्ट कर चुका हूं यहां से। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि जो पहला वाला लूप है बेटा वो सिर्फ लेंथ फाइंड आउट कर रहा है। समझ आ गया आपको? सर इफ a इक्वल्स टू 0 ही लिखा हो तो ये एरर नहीं है। कहां पर बेटा? लाइन 5 में। a इक्वल टू 0 नहीं, तब भी कोई एरर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक मिनट में बता देता हूं आपको दोबारा से, ये क्या हो जाता है बार बार। देखो यहां पे अगर हमने यहां लिखा a इज इक्वल टू 0, str c इज नॉट इक्वल टू नल, तो अब इस लाइन में क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, इस लाइन को यहां टर्मिनेट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि सिर्फ ये एक ही बार लेंथ कैलकुलेट करेगा, बार बार नहीं चलेगा। दिखा? मैम प्लीज कंफर्म कर लीजिए। Yes, sir. बच्चा क्या बोल रहा है, यस और नो? Yes. ओके, आई होप योर लॉजिक इज क्लियर। क्योंकि बेटा हमें लेंथ सिर्फ एक बार आइडेंटिफाई करनी है, हमें लेंथ बार बार नहीं फाइंड आउट करनी है। अगर हम लेंथ को बार बार फाइंड आउट करेंगे तो उसका लॉजिक ही नहीं बनता। लॉजिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हम एक बार लेंथ फाइंड आउट करके उसको टर्मिनेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे a इक्वल टू 0 पे। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर c इक्वल टू 0 भी कर दोगे, यहाँ लिख दोगे कुछ, तो उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली एक बार चल के सिर्फ लेंथ को फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, shall we proceed to the next question? Yes, sir. I think किसी का कोई डाउट नहीं है. Students, if you have any doubt, please post हाँ. your name into the chat box. लास्ट 5 मिनट्स हैं, आप ऑटोमेटा फिक्स से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो या कुछ भी हो तो आप वो पूछ सकते हैं बेटा। Srishti Tiwari, you may ask your question. हेलो सर। हाँ जी बेटा, हेलो। सर ये हम प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हैं, या फिर कोई मॉक